Yes. Budget of an economy with a 6 marks weightage, the fantastic subject of economics which gives us 6 marks. Belle belle, hello. बारी बारी देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज है हमारे economics. Come on, my dears, what is budget? Do you know what is budget? Budget is a systematic record of receipt and expenditure during an accounting year or during a fiscal year is called budget. What is budget? It is the systematic record cost. किसके रिकॉर्ड है, किसके बारे में है? हमारे कंट्री में डिफरेंट सेक्टर्स में से कितने सारे इनकम हम लोग ने कमाया है, हमारा देश ने कमाया है. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. How much income is contributed within the fiscal year and how much expenditure made by our country during this fiscal year is what called that record is maintained and policies are made is what called budget. Understand? So budget is not only for the fiscal year, the previous year what happened in this receipt and expenditure and how it is made and which areas it is made and done. What about the credit and debt side of our country? These all things are discussed and what policies are made by the parliament. And here the question is coming, who may present the budgetary policy in parliament? None other than that the Sitaram. कौन? Nirmala Sitaram, who is the finance minister of our country. कौन डायरेक्ट करेगा? कौन डायरेक्ट? Who do direct the budgetary planning of our country or budgetary policy of our country? The President of India. Now the question arises. The life is full of question mark now. Right? So, this question is arising. Who is the President of India? Who is the President of India? Come on, tell me, who is the President of India? Draupadi Murmu. Understand? So, these people do decide and this President will direct and the Finance Minister will present the budgetary policy of our country in Parliament and by the approval by the Parliament. Parliament you do approve these policies after the discussion, debate and all. Okay, debate is there, definitely they do fight each other. चप्पल उड़ा के फेंकना, चेयर उड़ा के फेंकना. Oh my God, वहां पर तो बहुत बड़ा सा थंडर बारिश होते हैं, है ना. बजटरी पॉलिसी को फिजिकल ईयर के बारे में बोलने की टाइम याद आया है कि फिजिकल ईयर कब बोलते हैं? फिजिकल ईयर मीन्स 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को अपन क्या बोलते हैं? फिजिकल ईयर बोला जाता है. ठीक है. नाउ वी विल मूव टू मैम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना है, क्या है, कुछ तो नोट्स में लिखो, बता दो क्या है. ऐसे ब्ला करने से थोड़ी ना समझ में आता है. आई नो दैट what you are thinking because I am the part of you only, my dear. So government budget is an annual statement, fiscal statement. Okay, fiscal year के statement है 1 अप्रैल से लेके मार्च 31 मार्च तक की बात है. ठीक है बच्चा. And the government budget is an annual statement showing item wise estimates of receipt and expenditure. अलग अलग आइटम एरियाज में टर्शियरी से प्राइमरी एंड सर्विस सेकेंडरी सेक्टर्स, ये आइटम वाइज व्हाट रिसीट इनकम कितना कमाया है, एक्सपेंडिचर कितना खर्च किया है ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर के बीच में. दैट इज व्हाट कॉल्ड 1 अप्रैल टू 31 मार्च. किसे? 31 मार्च. 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल to 31 मार्च. ठीक है. इसको अपन बोलते हैं क्या है? अपना फिजिकल ईयर बोलते हैं. ठीक है. सो एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर. बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स, ऑल द लेवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. ये यूनियन बजट, अपने पार्लियामेंट इंडिया की पार्लियामेंट बजट को अपन यूनियन बजट कहा जाता है, सेंट्रल बजट. ईच एंड एवरी स्टेट्स डू प्लान budgetary policy according to their regions and as well as here if we are discussing about in central government also make policy. This is about all over India, understand? So this is
the another name of this central budget is called the union budget. Now, in India, the budget is presented in parliament on in such a day. हाँ बिल्कुल नहीं दिख रहे, रीना चश्मा लगा के कैसे पढ़ाते हैं नाम, कुछ याद तो करो. चलो, इन इंडिया में इकोनॉमिक्स में टच किया है ना. इकोनॉमिक्स मेरा व्हाट टू से सब मक्खन बटर, अपने प्यारा सा लवली सब्जेक्ट प्यार से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है. देन 100 मार्क्स डैम श्योर, राइट. सो वैसे सब्जेक्ट में सब भूल जाते. व्हेन आई टच माई सब्जेक्ट मैं अपनी सब्जेक्ट है ना बच्चे. चलो, इन इंडिया द बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट on such day as president may direct. Who will direct? Already मैंने बोला है ना. President may direct by the convention. It is presented on the last working day of February every year. Means last year नहीं तो 1st of March मालूम. 1st of March to what? It will be effective in 1st of April to 31st of March. ठीक है. So and the receipt and the budget are not actual figures, but they are estimated value of fiscal year. This is the estimated value of fiscal year. Listen, we are going to discussing about the main objectives of budgetary policy. Main objectives. What are the main objectives? And what we are going to study? The objectives. From that objectives, one must be come for your examination. 101% objectives. Any one objective. So there are 5 objectives we are going to discussing. And from that, one objectives for 3 marks. No, 4 marks you will get. Okay, don't skip it. Objectives are 1. Objectives of government budget. Be careful. See, this question means any one objectives from this budget of an economy chapter you will get. Okay, for 4 marks. Always CBSE is asking this. Write a short notes on the particular objectives. Particular objectives in the sense GDP growth. इसके short notes लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं. कभी allocation of resources, स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से करके जो ऑब्जेक्टिव्स हम पढ़ने वाला है उसमें से कोई एक ऑब्जेक्टिव्स देखे उसका शॉर्ट नोट्स पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है. हमेशा आता है ऑब्जेक्टिव्स. सो डोंट स्किप इट. 4 मार्क्स के लिए आएगा. वो 4 मार्क्स हमको चाहिए हमको लूज नहीं करना है. ठीक है. सो सबसे पहले वाला ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर रहे हैं जीडीपी ग्रोथ. ठीक है. अब आपके अंदर डाउट आएगा मैम जीडीपी ग्रोथ के बारे में आया है, आपने इतना ही लिखा है, इतना लिखने से हमको 4 मार्क्स मिल जाएगा? नहीं मिलेगा. आपको क्या करना है, मैम ने पहले आपको क्या बताया, बजट के ऊपर जो शॉर्ट नोट्स इंट्रोडक्शन दिया है. बजट इज द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. फिस्कल ईयर इज कंसिडर्ड एज 1st of March अप्रैल टू 31st of March. 1st अप्रैल से लेके 31st of March तक होते हैं, है ना. ये 1st of अप्रैल में कौन ये करते हैं, अपना फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं बजटरी पॉलिसी को, प्रेजेंट करते हैं पिछले साल क्या क्या खर्चा हुआ है, कितना इनकम कमाया है उसके बारे में, और ये करंट ईयर मतलब ये जो इस साल हमको क्या करना है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं. फिर ये सारे चीज क्या होते हैं, काफी सारे जो पार्लियामेंट मेंबर्स होते हैं सब बैठ के मिलके क्या करते हैं, फाइनली अप्रूव करते हैं. दिस प्रोसेस इज व्हाट कॉल्ड बजटरी पॉलिसी. इसका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. ठीक है. एंड आपको क्या करना है, ये इंट्रोडक्शन लिखना है. देन आफ्टर कम टू द मेन पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स में हमको इतना ही पॉइंट से इसको 4 मार्क्स स्कोर करना है तो इतना डिटेल में. फिर ये लिखने के बाद आपको ये जो मेन पॉइंट्स को क्या करना है, पेंसिल से हाईलाइट करना है. अंडरस्टैंड. सो हियर जीडीपी ग्रोथ. जीडीपी ग्रोथ आ गया है. ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इन बजटरी पॉलिसी. राइट ए शॉर्ट नोट्स. ऐसे क्वेश्चन आ गया है तो आपको क्या लिखना है, इसके बारे में लिखना है. जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, ईच एंड एवरी नेशन डू मेक बजटरी पॉलिसी. अंडरस्टैंड. हर नेशन में बजटरी पॉलिसी बनाया जाता है. ठीक है. अपनी कंट्री में भी बनाते हैं. उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर मतलब पार्लियामेंट में होते हैं, हमको ऑलरेडी पता है. उसका अनदर नेम है यूनियन बजटरी पॉलिसी. अंडरस्टैंड. सो इसके बाद आपको क्या करना है, जीडीपी ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन आ गया. सपोज राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन जीडीपी ग्रोथ ऑफ बजटरी पॉलिसी और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ बजटरी पॉलिसी. ऐसा आ गया तो आपको लिखना है ईच एंड एवरी नेशन डू प्लान for budgetary policy of
fiscal year, and it is the central objectives of government budgetary. This is the main objective, central objectives यानी main objectives of what budgetary policy of a country, of a nation, and it achieved in two ways. ये कैसे achieve करते हैं? There are two ways achievement. First is what called by making public investment expenditure. Public इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे अपन को करना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ पर हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और अपने कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल ग्रोथ के लिए कहाँ में इन्वेस्ट करना है, ये टारगेट करेगा. एंड सेकंड में बाय इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट के एक्सपेंडिचर को कैसे अपन क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं, कैसे इनको सपोर्ट कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट टैक्स रिबेट एंड सब्सिडीज. थोड़ा सा टैक्स रिडक्शन करके देना है, और कोई भी बिजनेस हो अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको टैक्स रिबेट करना और सब्सिडीज को प्रोवाइड करना, अलावेंसेस मीन्स सब्सिडी अलावेंस प्रोवाइड करना. ये सारी चीजों के बारे में क्या करते हैं, इकोनॉमी थिंक आउट करते हैं. व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द नेशन वांट टू गेट ग्रो स्टेडीली. Understand, economic growth needs to be maintained very steady growth, means steadily. That is the reason that mainly अपने इकोनॉमी में, अपनी कंट्री में बजटरी पॉलिसी को प्लान किया जाता है. समझ में आया? Now once again, GDP growth, it is the central objective, main objectives of government budgetary policy. It achieved in two ways. दो कैटेगरीज में है ये. फर्स्ट इज बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का पॉलिसी बनाना है, वो कहां पर क्या करना है उसको पहले डिसाइड करना है, प्लान करना है. देन सेकंड में बाय इंट्रोड्यूसिंग प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट के एक्सपेंडिचर को इंट्रोड्यूस करना है थ्रू टैक्स रिबेट एंड सब्सिडीज. अंडरस्टैंड? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते क्या है, एक्चुअली क्या है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में? बिकॉज ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, क्या होते हैं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने के कारण प्राइवेट सेक्टर्स वांट टू टेक एनी व्हाट रिस्क, उनको रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं. प्राइवेट सेक्टर्स नेवर डू टेक अ रिस्क बिकॉज ऑफ व्हाट ह्यूज इन्वेस्टमेंट. सो ये सारी चीज किसके अंडर में आएगा? अपनी गवर्नमेंट के अंडर में. अगर प्राइवेट सेक्टर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनका मेन टारगेट क्या होते हैं, उनको क्या करना है, ज्यादा प्रॉफिट को कमाना है. एंड पब्लिक सेक्टर कुछ कर रहा है तो दोनों बैलेंस करके, प्रॉफिट आल्सो नीडेड एंड सोशल वेलफेयर आल्सो. अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल द टोबैको इंडस्ट्रीज, अल्कोहल इंडस्ट्रीज, ये सब रन कौन करते हैं? प्राइवेट सेक्टर्स. बिकॉज उनको क्या चाहिए, उनको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है. ये जो टोबैको इंडस्ट्रीज हो गया है, जो अल्कोहल इंडस्ट्रीज हो गया है, इन लोग क्या करते हैं, जैसे वही गवर्नमेंट को पता है कि इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. सो ऐसे वाले इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या है, प्लान बनाते हैं अपनी गवर्नमेंट, ज्यादा हैवी टैक्स चार्ज किया जाता है. यू आर गेटिंग द पॉइंट? सो ये दिस ऑल द आइटम्स कौन यूज करते हैं? दोज हु आर एडिक्ट. अंडरस्टैंड? सो उसमें हैबिट है, उन लोग यूज करते हैं. जैसे आइटम्स को क्या करते हैं, चार्ज टैक्स ज्यादा इम्पोज किया जाता है. एंड फॉर एग्जाम्पल खादी clothes, it's a normal clothes, it's used by the social society, social human beings. So उनके लिए क्या करते हैं, ऐसे वाले जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, गवर्नमेंट इसके ऊपर सब्सिडीज दिया जाता है. ये जो हैवी टैक्स चार्ज करके उसमें से क्या होता है, इन लोगों को बेनिफिट देते हैं. पब्लिक मीन्स दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस करते हैं सोशल वेलफेयर के लिए होते हैं, सोशल सबके लिए जो वेलफेयर होते हैं, सबके लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो आइटम्स के ऊपर क्या करते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज देते हैं. जैसे वाला प्लान कौन करते हैं, गवर्नमेंट करती है. दैट इज व्हाट कमिंग अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अंडरस्टैंड? उसके स्टेटमेंट आप ये आ गया है तो ये कैसे लिखोगे, वो जिसमें अभी आपको इधर नोट्स दे रहे हैं. नाउ allocation of resources or reallocation of resources, this is what we were discussing about. So what is exactly allocation of resources? I told you, due to huge investment, private sector don't want to undertake any risk. Understand? उनको क्या चाहिए, actually they are focused for earning more profit. My dears, this also can come अगर growth, economic growth नहीं आया short notes में, so ये आ सकते हैं reallocation activity, allocation और reallocation activities of और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी पॉलिसी. उसके शॉर्ट नोट्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये लिखना है. दिस इज वेरी इजी एंड सिंपल. आपको समझना है, फिर आपको क्या करना है, अपनी ओन सेंटेंस में
फ्रेम करके आपका जो नॉलेज को फ्रेम करके सबमिट करना है. नथिंग एक्स्ट्रा टू बी वरी नीड्स टू बी टेकन. इट्स वेरी सिंपल. रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस यानी गवर्नमेंट को ज्यादा क्या करना है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, काफी इन्वेस्ट करने के लिए प्राइवेट लोग क्या नहीं होते, तैयार नहीं होते, प्राइवेट कंपनीज तैयार नहीं होते. इसी टाइम पर क्या करते हैं, अपना गवर्नमेंट ये चीज को अंडरटेक करते हैं, इनिशिएटिव लेके ये चीज को कैसे बैलेंस करके अपना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को क्या करना है, अपग्रेड करना है, प्रोग्रेस करना है. उसके लिए भी अपने गवर्नमेंट क्या करते हैं, बजटरी पॉलिसी बनाने के टाइम पर ये चीज को भी दिमाग में रख के आगे प्लान बनाते हैं. अंडरस्टैंड. सो हियर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस हियर और रीअलोकेशन, इसको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस भी बता सकते हैं, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. कभी ये नहीं है तो ये मतलब डोंट गेट कंफ्यूज. अंडरस्टैंड. सो ड्यू टू द ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड लो प्रॉफिटेबिलिटी, लो प्रॉफिट, इसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं आता है. इसी कारण प्राइवेट सेक्टर डज नॉट अंडरटेक मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज. काफी सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेते प्राइवेट सेक्टर. कहाँ पर उनको ज्यादा कमाई होते हैं वहां पर वो बिजनेस वो चलाते हैं, वहां पर वो इन्वेस्ट करके बिजनेस करते हैं. सो दिस वर्क शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट. ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स एक्टिविटी कौन करते हैं, अपनी गवर्नमेंट करते हैं. इसमें क्या होते हैं, इम्पोजिंग टैक्स एंड इम्प्लीमेंटिंग सब्सिडीज इम्पोज करना और इम्प्लीमेंट करना और टैक्स इम्पोज करना, ये सारी चीज कौन करते हैं, गवर्नमेंट करते हैं. कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ज्यादा टैक्स को बढ़ाना है, कम करना है, सब्सिडीज कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज कौन लुक आफ्टर करते हैं, अपने गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, गवर्नमेंट के जिम्मेदारी होते हैं. ठीक है, जिम्मेदारी. ठीक है. सो दिस वर्क शुड बी डन बाय द government. And though budgetary policy, government aims to reallocate resources in accordance with the social and economic welfare of the कंट्री का सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर को मेंटेन करने के लिए अपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेते हैं. नींद आ रहा है, बोर हो रहा है, ऐसे पढ़ाएंगे तो बोर आएंगे ना, क्या ये ब्ला ब्ला ब्ला, हिंदी बोलने तो आते ही नहीं है, फिर भी बोल देती है. बट क्या करो मेरे बच्चों, आपके लिए बोलना ही पड़ते हैं, हिंदी में ही पढ़ाना पड़ता है, हिंदी भी सीखना पड़े. एक चीज मुझे आपको बताना, अपने सीबीएसई में काफी सारे अपने स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं. एक्चुअली they are facing the problem for understanding only in English. हम थोड़ी ना अंग्रेजी है, हम तो इंडियन भारत के लोग हैं, हमको हिंदी बहुत इम्पोर्टेंट, अपना देश भाषा है, अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है. सो वी हैव टू नो हिंदी. मैम क्या है इंग्लिश अंग्रेजी में हमको समझ में नहीं आता, हिंदी में बोलो. यस ऑफ कोर्स, अगर द साउथ इंडियन कैन स्पीक हिंदी लाइक दिस, व्हाई माय स्टूडेंट्स कैन फ्रेंच सेंटेंस इन इंग्लिश. मैं करेक्ट? Come on. I know that you are clapping for me. Okay, come back. Don't clap, listen. Because it is 4 marks question. Due to the huge investment and low profitability, private sector does not undertake many activities. So, the government sector needs to take initiative because government sector always thinking for balancing the profit and the social welfare of the society. So, this is all about what allocation of resources objectives. If it is coming for 4 marks, you have to write without thinking and keep on watching Economics with Music. Okay, we are moving to redistribution activities. Third objective is that redistribution activity. What is a redistribution activity? What is redistribution? Redistribution. Re means क्या? Something दोबारा हम distribute कर रहे हैं. That is what called a redistribution activity. You know what is redistribution? So क्या हो सकता है, सोचना पड़ेगा. सोचने से और कुछ आ रहा है दिमाग में. एक मूवी देखने के लिए मन कर रहा है, आज छुट्टी है इससे. अरे नहीं, अब इनको पढ़ना है, इनको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, ब्यूटीफुल सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं, अच्छे वाला सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं, तो इनको इसमें क्या नहीं करना है, स्किप नहीं करना, लेजी नहीं होना चाहिए. आप लोग लेजी हो जाएगा तो फिर बस गया क्या यार, फुल मार्क्स स्कोर करना है मैम. रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज, ज्यादा तो नहीं बोल रहे, चलो ज्यादा ही बोल रहे मैम. ओके, आई नो दैट. Redistribution of economic activities. In redistribution of economic activities, already I told you, it's a form of collection of tax from the rich people and redistributing to the poor society. Because for maintaining the economic balance of the country, अपने देश के economic balance को maintain करने के लिए सब लोग बिना भूख से रहने के लिए, अच्छे से रहने के लिए क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़े इनिशिएटिव लेते हैं थ्रू द पॉलिसी ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड
wealth. This is the third objectives of budgetary policy. My dears, it's very very important. You have to think about and we have to work on it, right? हर घड़ी बदल रही है रूह जिंदगी, चाव है कभी कभी है डूब जिंदगी, हर पल ये आम जी भर जियो, redistribution of income and wealth, right? Yes, budget of the government shows its comprehensive exercise on the taxation and subsidies. अपनी गवर्नमेंट ने सोचते हैं, प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो चीज को डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट में. दैट इज व्हाट कॉल्ड द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. मीन्स द गवर्नमेंट डू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द सोसाइटी एंड इवन प्रोवाइड सब्सिडीज टू द tax to the public for maintaining the tax relaxation. The government uses fiscal instrument. इधर fiscal instrument होते क्या है? Tax and subsidies are the fiscal instrument. Understand? ये जो fiscal instrument अपनी government implement करते हैं, means to collect the tax from rich people and provide subsidies to the poor people. To taxation and subsidize with the view to improving the distribution of income and wealth in the economy. अपना इकोनॉमी का इनकम एंड वेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, लोगों का वेलफेयर के लिए, लोगों को सुरक्षित रहने के लिए, लोग खुशी से रहने के लिए, खा पी के रहने के लिए क्या करते हैं अपनी गवर्नमेंट, ये जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट टूल को यूज किया जाता है उसके बारे में बजटरी पॉलिसी जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं वहां पर डिस्कस किया जाता है. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज द साइन ऑफ सोशल जस्टिस. यस ऑफ कोर्स सबके पास बराबर इनकम होना चाहिए. उसका मतलब ऐसा नहीं है. काफी सारे बच्चे ये डाउट मेरे से पूछते हैं कि मैम इनकम कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट पीपल, दे आर हैविंग डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम टू बी गेट अर्न्ड, है ना? अलग अलग तरीका से इनकम कमाते हैं. फिर कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम? बेटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ये है कि सबको खाने पीने के लिए तो सबके पास पैसा होना चाहिए. दैट इज द मेन टारगेट ऑफ आवर इंडिया गवर्नमेंट टू बैलेंसिंग द इकोनॉमी टू गेट ए न्यूट्रिशियस फूड ए minimum 3 times. Understand? So that is what called a justice. Clear? So improving the distribution of income and wealth in the economy. Equal distribution of income is the sign of social justice. अभी मैम ने क्या किया है, इसे साथ में लिखा है. आपको क्या करना है, पॉइंट पॉइंट भी लिख सकते हैं. फर्स्ट आपने ये फर्स्ट सेंटेंस को फर्स्ट पॉइंट में लिखा, सेकंड सेंटेंस यू कैन गो फॉर पॉइंट नंबर 2. लाइक इफ यू आर राइटिंग दैट इज ऑल्सो बेस्ट एंड गुड. So equal distribution of income is the sign of social justice, which is the principal objectives of any welfare state in इंडिया. हर एक स्टेट, हर एक रीजन ऑफ इंडिया में भी ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पॉलिसी फिजिकल टूल्स यूज करके, मीन्स टैक्सेशन एंड सब्सिडीज पॉलिसी को यूज करके क्या करते हैं, मेंटेन करने के लिए कोशिश करते हैं, सोचते हैं, ये इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हो रहा है. अंडरस्टैंड? एंड बाय इम्पोजिंग टैक्स ऑन रिच पीपल, इसमें क्या होता है, इनकम टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी हो गया, ये सारे टैक्स इम्पोज करते हैं. एंड गिविंग सब्सिडीज टू द पुअर, उसमें से पुअर लोगों को सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं. एंड सेकंड में बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू द बीपीएल पॉपुलेशन, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए फूड सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. कैसे प्रोवाइड? लो प्राइस, सस्ते में उनको प्रोवाइड करते हैं, वो भी खा पी के अपनी हेल्थ मेंटेन करें, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करके अपने आगे लाइफ को बढ़ाने के लिए. अंडरस्टैंड? अनदर एग्जाम्पल वी कैन टेक अ फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सिलेंडर फ्री में देते हैं अपनी पोअर सोसाइटी के लिए. सो दिस इज कमिंग अंडर व्हाट, redistribution of income and wealth. Redistribution of income. Income is redistributed. How to redistribute? Once they collected through the fiscal tools such as tax and subsidies. Understand? So if this question is coming for 3 marks or 4 marks objective, इसमें definitely one objective is 101% है, इसमें कोई डाउट नहीं है. अपन को तैयारी करना ही करना है. सबसे पहले हमने डिस्कस किया है इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, जीडीपी के बारे में. जीडीपी ग्रोथ वेरी टारगेटेड होते हैं, हर एक कंट्री का मेन टारगेट है द स्टेडी ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी को ग्रो करना ही करना है. एंड सेकंड हमने डिस्कस किया था रीएलोकेशन
प्रोसेस के बारे में, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर तैयार नहीं होते हैं। सो क्या करते हैं, पब्लिक सेक्टर को इनिशिएटिव लेके वो चीज को आगे बढ़ाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अंडरस्टैंड। एंड थर्ड में हमने डिस्कस किया है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। Understand? Now, the fourth is that मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, डिफेंस हो गया और अदर सर्विस सेक्टर सच एज पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रोड हो गया, रेलवेज हो गया, दिस और सारी चीजों को मेंटेनेंस को कौन लुक आफ्टर करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को लुक आफ्टर करना पड़ते हैं। उसके लिए कितना अमाउंट स्पेंड करना है, कितना पिछले साल कितना खर्चा किया है, अभी नया रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कितना कर रहे हैं, दिस ऑल इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए हाउ मच अमाउंट नीड्स टू बी डन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल एरियाज को मेंटेनेंस करने के लिए हाउ मच स्पेंड करना है, कितना खर्चा हो रहा है, कहां पर कम करना है, बढ़ाना है, दीज ऑल थिंग्स आर डिस्कस्ड, इज कॉल्ड मैनेज्ड पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और लास्ट में एक चीज ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, वो भी करके अपन आज ऑब्जेक्टिव्स वाला कंप्लीट करेंगे। देन आफ्टर विल मूव टू कंपोनेंट्स ऑफ बजटरी पॉलिसी। ओके, डोंट स्लीप, एंजॉय द क्लास। इकोनॉमिक्स वेरी गुड सब्जेक्ट। Of public sector enterprises. Management of public sector enterprises means the government to manage the public sector enterprises. Already I told you that here there are large number of public sector industries. काफी सारे public sector industries है which are established by the government for social welfare. काफी सारे जो public sector industries मैंने बोला है, defense industry हो गया, police station, post office हो गया, banking sector industries हो गया, medical sector industries हो गया, health industries हो गया है, school colleges हो गया, government school and colleges, ये सारे इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं, उसका मेंटेनेंस को मैनेज करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए कितना अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा, कितना इनकम वहां से मिल रहा है, कितना पेमेंट देना पड़ेगा, दिस मीन्स कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, दीज ऑल थिंग्स आर लुक आफ्टर बाय प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस इज द अनदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर अबाउट प्रेजेंटिंग budgetary policy in the parliament. So budget is prepared by with the objectives of making various provisions for managing such enterprises and for providing the financial help. Understand? So this is what about the management of public sector enterprises. Management of public sector enterprises means government sector industries को क्या करना है, लुक आफ्टर करना है, उनका मेंटेनेंस के लिए खर्चा करना है, ये सारी चीज कहाँ है, वो चीज भी पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है। ठीक है, एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, ओके, स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज यानी क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। कब द गवर्नमेंट डू बैलेंस द इकोनॉमी, वी नो दैट ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ बूम एंड डिप्रेशन, रिसेशन, understand? So recession, depression, and these are the situation of what according to the market force of demand and supply क्या होते हैं, इकोनॉमी में क्या होता है, इन्फ्लेशन राइज होता है और डिफ्लेशन राइज होता है। ये टाइम पर कुछ फिजिकल टूल्स को यूज करके, फिजिकल टूल्स और मॉनिटरी टूल्स को यूज करके गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपने इकोनॉमी को बैलेंसिंग करते हैं। दैट इज व्हाट कमिंग अंडर स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसको अपन बोलते हैं स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। This is the another objectives of budgetary policy of our country. इसका भी नोट्स में अभी बोर्ड में लिखे आपको बता दूंगी। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, जीडीपी ग्रोथ है, टारगेटेड होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव से उसके शॉर्ट नोट्स आपने लिखा होगा, मैंने आपको समझाया। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। एंड थर्ड हमने डिस्कस किया है, थर्ड ऑब्जेक्टिव में हमने क्या डिस्कस किया है, रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज के बारे में। फोर्थ में मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। द लास्ट वर्ड इज स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये चीज का मैं नोट्स अभी दे रही हूँ, उसके बाद अपन ये आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। बट इसमें से 4 मार्क्स आपके पॉकेट में आ चुके हैं, ध्यान से पढ़ो, मेरी नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कॉपी में लिखो, प्रैक्टिस करो, इंट्रोडक्शन पोर्शन भी लिखे। अपन को क्या करना है, चकाचक लिखे बढ़िया से क्या करना है, ऐसे मार्क्स स्कोर करना है। अंडरस्टैंड? सो विल मूव टू स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। उसका नोट्स में बना रही हूँ। ओके, economic activities. Okay, already we have discussed.
So here the government is used to prevent business fluctuations यानी something is not in balance, कुछ चीज तो बैलेंस पे नहीं है, उस चीज को बैलेंस करने के लिए अपनी गवर्नमेंट क्या करते हैं, इंटरफियर करते हैं and क्या करते हैं, इंटरफियर करके कुछ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं. वी ऑलरेडी नो दैट the measures taken by the government for controlling inflation and deflation. The situation of boom and depression और boom and recession and depression, ये जो टाइम पीरियड में गवर्नमेंट क्या करते हैं, फिजिकल टूल्स एंड मॉनेटरी टूल्स को क्या करते हैं, आगे ले आते हैं. सो अपना इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को बैलेंसिंग करना पड़ता है. दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो बूम एंड डिप्रेशन ऐसे होते हैं, हमको पता है, जैसे बूम एंड डिप्रेशन, right? Steadily the price is increasing. So what will happen? What price increases? Understand? And there exists inflation, है ना? प्राइस इतना इंक्रीज होगा उतना इन्फ्लेशन राइज होगा, वैल्यू ऑफ मनी डाउन हो जाएगा. एंड इधर आएगा जो डिफ्लेशन है. डिफ्लेशन मीन्स क्या है, सप्लाई से मीन्स डिमांड कम होते जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, फिर डिफ्लेशन होगा, डिमांड कम हो जाता है. इस टाइम पर क्या होते हैं, सो प्राइस सीधा डाउन होगा, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगा एंड बैलेंस नहीं हो पाता है. इधर ये जो पोर्शन होते हैं इसको बोलते हैं रिसेशन भी होते हैं. ये जो ना इन्फ्लेशन है ना डिफ्लेशन है, कुछ इकोनॉमी में ना प्रोग्रेस है, ये जो सिचुएशन आते हैं ना. सो इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन में अपनी गवर्नमेंट अपने टूल्स को ले आएगा. कौन से टूल्स को, मॉनेटरी पॉलिसी टूल एंड फिजिकल पॉलिसी टूल को लेके आएंगे. उसको इम्प्लीमेंट करके क्या करेंगे, बैलेंसिंग करते हैं इकोनॉमी को. दैट इज व्हाट कॉल्ड स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट फॉर बैलेंसिंग द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू द प्रोग्रेस, थ्रू इट्स प्रोग्रेस, country's economic progress. Understand? So these all are the 5 main objectives of budgetary policy. में ज्यादा आप लोगों के दिमाग में एकदम से अभी मैम कंपोनेंट्स भी पढ़ाएंगे, सो फिर दिमाग में नहीं जाएगा, वो ऊपर से चले जाएंगे. सो बेटर वी हैव टू स्टडी ओनली द ऑब्जेक्टिव्स नाउ एंड soon I am uploading components of budgetary policy. Here already keep it in mind and be confident with the answer of this, because objectives of budgetary policy 4 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आएगा. कोई एक टॉपिक लेके आपको क्वेश्चन आएगा. आपको क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखो, हर एक टॉपिक्स के बारे में जानकारी ले लो, समझ लो, नोट्स बना के रखो, लिखो, स्कोर करो. 4 मार्क्स, डोंट स्किप इट. पॉकेट में अपने मार्क्स जाएगा 4 मार्क्स फ्रॉम बजटरी पॉलिसी. एंड 2 मार्क्स के लिए असेशन रीजन क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं कंपोनेंट्स में से. वो कंपोनेंट्स वाला अभी अपन पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है. सो मजे में मस्ती में अपन क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट्स के अपने चैप्टर की नॉलेज को गेन करेंगे एंड स्कोर करेंगे 4 मार्क्स. डांस करेंगे बेले बेले. इकोनॉमिक्स विद म्यूजिक, साइनिंग आउट, सर